Let's start the essay. So today's session is that essay strategy session, that is how to write a good essay. So brief introduction of myself, that I'm Sumit Ashok Katarmal. Okay, so given the 2020 interview, CSE interview under 2018 and the 2019 CIPF interview. So during the time of this philosophical essay trend, I scored 135 marks in the essay, so which is one of the good one or decent one. So that's why we are taking the essay, this lecture. And basic thing is my English is that not good enough to write a good essay, but still I scored some of the good marks. So because of the multiple content, dimension, utilization, all these stuffs utilized from the complete GS preparation, I secured this amount of marks. If somehow the good come out on the language, they can score the major one also. And the second thing about, so during my essay, so one mistake I committed that in the first essay I wrote only the 800 words, because okay, one of my practice was to write essay of the 1600 to 1700 words. So this was a bad practice definitely. Okay, or this I covered in the 12 to 15 pages. ओके ठीक है, जब लेकिन ऐसे का पेपर आया तब मैंने देखा ही नहीं कि पहले मुझे कितने पेजेस मिलने वाले हैं वहां पे. ठीक है, मैंने स्टार्टिंग ठीक है कर दी ऐसे की, लिखना शुरू कर दिया. एक पेज पे मेरे एवरेज 150 वर्ड्स बैठते थे यहाँ पे जब मैं घर पे लिखता था या फिर प्रैक्टिस करता था तब. लेकिन वहां पे मैक्सिमम मेरे बैठे 100 वर्ड्स मैक्सिमम, कई कई तो 80 है. ठीक है, तो पहले ऐसे में जब लास्ट के 2 पेजेस बचे थे तब मुझे समझ में आया कि अरे कंटेंट तो बहुत बाकी है और ऐसे को अभी एंड करना है. लास्ट के 2 पेजेस बचे थे मेरे पास. ठीक है, तो इसलिए फिर मेरे 800 हो सके वहां पे मैक्सिमम. इन द नेक्स्ट ऐसे आई मैनेज टू राइट 1100 वर्ड्स. ठीक है, सो आई थॉट इफ आई एबल टू राइट द 1000 और 1200 वर्ड्स आई कैन स्कोर द 5 to 10 मार्क्स मोर. ठीक है, दैट टाइम. बट उसका एब्रप्ट एंड हुआ था, तो इसलिए थोड़े से मार्क्स पहले ऐसे में कम आए होंगे. मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना मार्क्स आएंगे उसमें ऐसे में, लेकिन प्रैक्टिस बहुत की थी इसलिए. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द essay lecture. So as the start with the agenda of the day, that definitely we will start our lecture with the quote, then approach, what is the approach to write a essay, a good essay enough, then the live practice. So we will do a structure of particular essay from the 2022 paper itself. ठीक है, which will be the surprise for you and me as well. ठीक है, and the last is a question and answer session. So the first slide is about the quote from the Mahatma Gandhi, that is a persistent questioning and healthy inquisitiveness are the first requisite for acquiring learning of any kind. So what is the meaning of this quote? What can be the meaning? So this is like a philosophical essay. This quote directly can come into the essay, okay, and this can be the philosophical essay. So whenever you visited such type of quotes, you should explore it or expand it. So क्या होगा इसका मीनिंग? दिस कोट टॉक्स अबाउट व्हाट, जो 2 क्वालिटीज पूरे यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी लगने वाली है. रैशनल, इज इट रैशनल थिंकिंग? यस, दैट इज अ क्वेश्चनिंग, दैट इज अ क्यूरियोसिटी. नेक्स्ट इज अ definitely that ability to know multiple things. So these are the 2 qualities required. So it is more talking about the related with the education. This is the third. So this is the way they can ask any essay, so through the quote. So in this lecture we are going to expand such type of quote so that you will find a very easy in exploring the essay. Now the first thing, why essay is so much important in the UPSC preparation. Why essay is so much important? ये तो क्या है, टॉपर्स के मार्क्स है. हाईएस्ट मार्क्स 175, एवरेज मार्क्स 120, 110, 120. लोवेस्ट मार्क्स कितने आ सकते हैं ऐसे में? कम से कम कितने आ सकते हैं?
60 भी आ सकते हैं, 70 भी है। when there is a 175 वहां पे 70 80 भी है, when there is a 150 वहां पे भी 70 60 भी है, 65 भी है। that means there is a very huge difference in the marking, ठीक है। highest can be the 175 but ये philosophical essay के पहले के थे, ठीक है। अभी this year highest marks is a 149 during the philosophical from the last 2 years, 150 145 this is the highest one, ठीक है। and minimum 65 भी है, 70s भी है, ठीक है। दैट मीन्स कितना है टोटल डिफरेंस? 100 मार्क्स का तो सिर्फ एक पेपर में डिफरेंस है, ठीक है। जीएस में मैक्सिमम मार्क्स कितने स्कोर होते हैं? 120 किसको मिलते हैं? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या सारे जीएस में आ सकते हैं 120? हार्डली वन, ठीक है। इस बार तो तुमने देखा होगा क्या जीएस 3 कितना है टॉपर? जीएस 3 2022 टॉपर 101 मार्क्स, टॉपर को ही 101 है। एवरेज मार्क्स कितना है? 70 to 80, ठीक है। ऐसे में एवरेज मार्क्स 120, ठीक है। हाईएस्ट मार्क 174। सो दिस कैन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इन फर्स्ट आइदर यू आर इन द इन लिस्ट और आउट ऑफ द लिस्ट। पहले तो यही है, ठीक है। पहले तो इंटरव्यू वाली लिस्ट, उसके बाद में फिर रैंक वाली लिस्ट, उसके बाद में फिर तुम्हें चाहिए वो पोस्ट वाली लिस्ट, उसके बाद में फिर कैडर वाली लिस्ट। सो वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैन मेक अ सच अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। और इसका प्रिपरेशन इजी है डिफिकल्ट है? बाकी जीएस से इजी है डिफिकल्ट है? सबसे इजी है। प्रिपरेशन है क्या कुछ? ज्यादा नहीं है क्या? लेकिन है ना, प्रिपरेशन है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन क्या सेपरेट प्रिपरेशन है? सेपरेट प्रिपरेशन करना ही नहीं है उसका, ठीक है। वो बाकी जीएस के साथ ही हो सकता है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया कि हाँ ये एसी के हिसाब से भी प्रिपरेशन हो सकता है, तो जीएस के साथ ही, ठीक है। एंड द सेकंड पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द जीएस 4। यहां पे कितने मार्क्स आ सकते हैं? अगेन 150, you can score 150, you can score 160 as well। 150 160 भी है हाईएस्ट। और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? कैन वी यूटिलाइज दिस इन द एसे? वी कैन यूज, और इन द रिसेंट ट्रेंड ऑफ द फिलोसॉफिकल एसे, फिलोसॉफिकल एसे इज कंप्लीटली लिंक विथ व्हाट? GS4 दैट इज इथिक्स। सो फिर एक सब्जेक्ट अगर तुमने कर लिया तो कितने मार्क्स का कवर हो रहा है? 500। एंड फ्रॉम दैट 500 व्हाट यू कैन डू, और यू कैन फेच मोर देन 60% मार्क्स। दिस इज अ सिंगल सब्जेक्ट दैट इज अ एसे एंड द एथिक्स व्हिच कैन गिव यू द मोर देन द 60% ऑफ द मार्क्स। एंड बाकी वाले कितने देते हैं? 30 40 हाईएस्ट 45 50 तो बहुत ही मुश्किल है, मिलता ही नहीं है 50, ठीक है। लेकिन 40 to 45 मार्क्स वो भी टॉपर को, बाकी तो मिल ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई एसे इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन सबसे निग्लेक्टेड क्या है? सबसे निग्लेक्टेड प्रिपरेशन और एम्फेसिस किसके ऊपर है? नहीं है ही नहीं। दैट इज अ एसे, ठीक है। एसे सबसे निग्लेक्टेड है सब्जेक्ट वाइज और पेपर वाइज, जिसका कोई प्रिपरेशन नहीं है। कुछ लोग तो समझते हैं कि उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करना है, जाके लिखना है ताकि अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनलिटी रहती है, फ्रेशनेस रहता है, ठीक है। गलतियां फिर पहली बार वही पे होती है, इतनी सारे की फिर आउट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो यही है कि सबसे निग्लेक्टेड भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सो अवर एजेंडा इज हाउ टू स्कोर द एटलीस्ट 145 मार्क्स मिनिमम। अगर वो ज्यादा दे रहे तो मिनिमम 145, अगर उन्होंने फिलोसॉफिकल में भी ज्यादा देना शुरू किया तो, नहीं तो फिर एवरेज 135 वो तो आ ही सकते हैं। अगर तुमने जनरल प्रैक्टिस भी कर ली ना तो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना आने के लिए, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ द एसे राइटिंग, हाउ टू चूज अ टॉपिक, हाउ टू डू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, and the more important the current trend of the philosophical essay, this we are going to know. So most important in the essay is writing a good introduction as well as, ठीक है, concluding with a best lines, best approach or with the some
फ्रेशनेस, ठीक है, वहां पे भी चाहिए, नहीं तो क्या हो, तो रिपीटेशन हो जाता है पूरा ऐसे का, क्या करता है, कंक्लूजन तुम लिख देते हो लास्ट में, कंक्लूड करना है ऐसे जो तुमने अभी तक लिया उसकी समरी तुम लिख देते हो। समरी यानी नहीं, कुछ भी अलग लिखना है, लेकिन अलग आर्गुमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, वहां पे कुछ भी अलग फ्रेश आइडिया चाहिए, ठीक है, जिससे तुम एंड कर सकते हो। सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न। सो ऐसे का तुमको पता है ये पहला पेपर रहता है, ठीक है, इन द यूपीएससी मेंस इट इज अ फर्स्ट पेपर। इसका इम्पैक्ट रहता है क्या बाकी सारे पेपर्स के ऊपर? रहता है इम्पैक्ट, किसी भी जिसने भी मेंस दिया है ना उसको पूछो जाके, ठीक है, वो एक बताएगा कि अगर तुम्हारा ऐसे का पेपर अच्छा गया, क्योंकि पहला पेपर रहता है, उस दिन एक ही पेपर रहता है, ठीक है, पहला है, फ्रेश है, एक ही पेपर है, यानी दिमाग में ज्यादा ऊपर, ठीक है, प्रेशर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, और पहला पेपर है, अगर इसमें अगर तुमने अच्छा कर लिया तो सेकंड पेपर से यानी जो GS1 है वहां से तुम्हारे पेपर कुछ कम भी पड़ा होगा ना तो भी अच्छा जाना शुरू हो जाए। और जिसका पहला पेपर हिट नहीं हुआ उसका क्या गड़बड़ होता है, प्रिपरेशन अच्छी भी रही हो, ठीक है, तो भी वो पेपर इतने अच्छे कॉन्फिडेंटली वो दे नहीं पाता है, क्योंकि ऐसे में उसको पता रहता है कि ज्यादा स्कोर हो सकता था, थोड़ी सी मेहनत अगर थोड़े से ये मिस्टेक्स कम किए रहते तो भी ज्यादा स्कोर हो सकता था, लेकिन वही गड़बड़ होने के बाद उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है, डाउन। मेरा यही हुआ, मेरा GS का प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं था, ऑप्शनल तो था ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑप्शनल का पेपर 2 तो लिखा ही नहीं था, पेपर 1 ही लिखा था मैंने, वो कोविड के बाद का था ना हमारा एकदम से, तो उसका टाइम ही नहीं था, सारे बुक्स यही पे थे ऑप्शनल के। लेकिन मेरा ऐसे का पेपर अच्छा गया था, ये मुझे पता था, क्योंकि मैंने ऐसे की प्रैक्टिस, नीरव भैया ने मुझसे ऐसे की प्रैक्टिस इतनी करवा ली थी कि वो पता था मुझे कि ऐसे का पेपर मेरा अच्छा जाने वाला है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैंने बाकी सारे पेपर्स दिए, ठीक है, तो उससे ऑप्शनल भी अच्छा चला गया। तो इसलिए ये पहला पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। देन कितना, डेफिनेटली 3 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है, 3 आवर ड्यूरेशन है, दो टॉपिक दो रहने वाले वहां पे, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पुराना पैटर्न ऐसा था कि एक जो सेक्शन था वो फिलोसॉफिकल आता था मोस्टली, सेक्शन बी एंड द सेक्शन में समवॉट फैक्चुअल वन। लेकिन लास्ट 3 इयर्स से कैसे आ रहा है, फ्रॉम द 2020 में 7 फिलोसॉफिकल एसेस थे और 8 नंबर का सिर्फ वो टेक्निकल रिलेशन भी था इंटरनेशनल वाला, और 2021 से तो फिर पूरे के पूरे 8 ही philosophical one. So this is the section A and the section B. Each essay carries definitely 125 marks. ठीक है, then there is a separate division. आपको पता है कि वो ऐसे प्रिंट होके आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट रहता है ना उसके ऊपर सेक्शन ए के 4 एसेस, सेक्शन बी के 4 एसेस अलग अलग तरीके से प्रिंट होके आते हैं। अपने यहाँ पे आदत क्या रहती है अपने को कि अपन पेज उठाते हैं एक गट्ठा, एक 7-8 पेजेस, उसके ऊपर क्या करते हैं अपन ऐसे लिखते जाते हैं, देन नेक्स्ट ऐसे आता है उसके ऊपर, वहां पे ऐसे तुमको इतने ज्यादा पेजेस नहीं मिलने वाले, ठीक है, वहां के पेजेस का जो डायमेंशंस है वो भी अलग रहता है। तो जो गलतियां मैंने की है वो मैं तुमको बताऊंगा ताकि तुम वो ना करो। तो वहां पे वो सेपरेट ऑलरेडी दिया रहता है, ठीक है, जैसे तुमको स्टार्ट करना है सेकंड से वही से स्टार्ट करना है, तुम ज्यादा लिख ही नहीं सकते ऐसे, किसी कोई उसको स्क्रैच करके आगे नहीं लिख सकता, तुमको वही से स्टार्ट करना है, यानी लिमिटेड पेजेस है, लिमिटेड पेजेस में तुमको पूरा कंटेंट बिठाना है और उतना लिखना है, ठीक है। तो कितने वर्ड्स लिखने हैं, 1000 to 1200, कम या ज्यादा कितने लिख सकते हो इसमें, 10% प्लस माइनस, ठीक है, मोस्टली स्टिक विद द गिवन लिमिट ऑफ द वर्ड्स, दैट इज 1000 to 1200। अभी यही गलती जो मैंने की थी वो तुमने नहीं दोहराना है। What was the mistake? That I followed that writing of the essay, that is the 1500 words, 1600 words। इससे क्या होगा कि मेरा कंटेंट कॉम्प्रेस हुआ ही नहीं कभी, वो कम वर्ड्स में जो अच्छा लिखना होता है ना वो मुझे आए नहीं उस टाइम, तो मैंने इतने वर्ड्स में प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मुझे लगा ठीक है वहां पे 1200 है, 100-200 वर्ड्स कम ज्यादा हो सकते हैं वहां पे, तो लिख लेंगे अपन 1400 वर्ड्स, लेकिन वहां पे तो मुझे 800 ही मिला लिखते, क्योंकि वो पेजेस छोटे, मेरा हैंडराइटिंग बड़ा, तो इससे हुआ ही नहीं। तो तुम्हें प्रैक्टिस कितना करना है, इतना ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, इट शुड बी विद इन द 1000 to 1200, मैक्सिमम 1300, मिनिमम 900, ठीक है, उसके ऊपर नहीं, नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं, ठीक है। और इतने तो लगते ही है, अगर फिलोसॉफिकल ऐसे है इतना ओपन एंडेड है, ठीक है, ऐसे वही है कि पूरा ओपन एंडेड है, क्योंकि GS का क्योंकि सिलेबस डिफाइंड है एक, ठीक है, प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है, लिखना बहुत कम है, ठीक है, यहाँ पे तुमको पूरा GS भी बिठाना है और तुम्हारा पूरा लाइफ भी बिठाना है यहाँ पे,
ठीक है 1200 वर्ड्स में। तो ये पूरा ओपन एंडेड है, तुम लिख सकते हो, बहुत लिख सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्ट करना है 1000 टू 1200 वर्ड्स में। देन द नेक्स्ट, क्या इसका प्रिपरेशन है जरूरी? और द मीथ्स देयर आर द सर्टेन मीथ्स अटैच्ड विद द ऐसे प्रिपरेशन। मीथ्स सेपरेट प्रिपरेशन लगता है क्या ऐसे को? सेपरेट नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। लगता है, अपन करते नहीं है या फिर कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि तुम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे कितना, 10 दिन 15 दिन मेंस के पहले भी कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 5। मैक्सिमम मार्क्स कितने 5 क्वेश्चन को? 60। यानी 60 मार्क्स के लिए तुमने कितने दिन पढ़ा? 10-15 दिन। 250 मार्क्स के लिए कितने दिन पढ़ा? एक दिन। कौन सा? वो भी पेपर के पहले का, वो भी तुम आधा टाइम। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन तुम्हारे 2 पेपर रहने वाले, उसका रिवीजन करते हैं। जब शाम होती है 6-7 बजे, तब ध्यान में आता है कि नहीं यार कल ऐसे का पेपर है, एटलीस्ट कोड तो देख लूं, कुछ फैक्ट्स तो देख लूं, तब पेजेस अपन क्या करते हैं, टर्न। सेम बाकी का भी है। तो पेपर थी तो अलग ही बात है, वो इतने सब्जेक्ट है कि उसको अलग अलग एक एक पेपर हो जाएगा उसका। सिक्योरिटी, डिजास्टर, साइंस एंड टेक, ठीक है, उसके बाद में इकोनॉमी, उसमें भी एग्रीकल्चर वगैरह बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको भी इतने दिन पढ़ते बैठते हैं, लेकिन आएगा कितना? 20-30 मार्क्स का। डिजास्टर मैनेजमेंट 5-6 दिन पढ़ा, मार्क्स कितने? 30। ठीक है, तो यही गड़बड़ है कि इसकी सेपरेट प्रिपरेशन ही नहीं होती है। लेकिन क्या अलग टाइम देना पड़ेगा? थोड़ा सा, हार्डली, और वो भी कितना? मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स डेली। वो भी क्यों? क्योंकि उसका फॉर्डर कलेक्ट करने के लिए। वो भी कहां से मिलेगा? तुम्हारे जीएस के प्रिपरेशन से। सिर्फ तुमको वो पढ़ते समय ये सोचना है कि मुझे ये ऐसे में कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, बस 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, तो इसका जो मीथ है कि प्रिपरेशन नहीं लगता है, ये गलत है। यहाँ पे प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन चाहिए ऐसे का। बहुत सारा एक ये भी मीथ है कि पहले ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए ऐसे का। डायरेक्टली कहां पे लिखेंगे अपन? इन द मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या सही है प्रैक्टिस? सही है क्या प्रैक्टिस? मेरे हिसाब से नहीं है। कुछ लोग करते हैं डेफिनेटली, अगर उनको वो जमता भी होगा, नहीं तो फिर अच्छा भी लगता होगा, जो भी है उनकी प्रैक्टिस। लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिस सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम जो मिस्टेक कर रहे हो लास्ट मोमेंट पे, वो ना हो इसलिए तुमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और अभी जो फिलोसॉफिकल ऐसे है, उसका सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या है अभी का? दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। थोड़ा सा भी इंटरप्रिटेशन गलत हो गया तो तुमको पता भी नहीं चलता है कि तुमने यूटर्न ले लिया कब का। ठीक है, वो कब पता चलेगा? बाहर आने के बाद कि यार पहला ऐसे ने तो यूटर्न ले लिया। तो उसमें भी तुम्हारे निगेटिव भी मार्क्स आ सकते हैं। ऐसे में निगेटिव मार्क्स आते हैं, ऐसे में नहीं, पूरे जीएस में भी निगेटिव मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी निगेटिव मार्क्स आ सकते हैं। कितने निगेटिव मार्क्स है इस बार? मेरे ख्याल से इस बार -35 मार्क्स है किसी को, 25 -35 मार्क्स है किसी को तो भी इस साल 2020 में। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग है, मेंस में भी है। अगर गड़बड़ की तुमने ऐसे में तो है डेफिनेटली। सो डायरेक्टली नहीं लिखना, देयर इज अ नीड ऑफ द सम प्रैक्टिस। और मैंने तो बहुत की थी। मैंने लगभग 22 ऐसे लिखे थे, ये भी मेंस के टाइम में, बिटवीन द प्री एंड द मेंस का जो 3 महीने का टाइम रहता है ना, उसमें 22 ऐसे लिखे थे मैंने। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही मेरा बेनिफिशियल हुआ था। देन डेफिनेटली इट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पेपर बट कैन फेच अ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मार्क्स। देन ये अपने बात कर ली इस पे। लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा सबसे बड़ा फियर फैक्टर। इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरी गुड इंग्लिश? ठीक है, वो फ्लोरी वगैरह लैंग्वेज, बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए क्या? क्योंकि हम सब मराठी मीडियम वाले, ठीक है, हमें हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, मराठी अभी भी सीखे ऐसे लगता है। ठीक है, पुणे में आने के बाद तो, ठीक है, पुणे की मराठी और हमारी मराठी फिर तो खत्म ही है। ठीक है, ऐसे में इंग्लिश लिखना है। ठीक है, क्योंकि सबने चाहिए फ्लोरी लैंग्वेज। कहीं डिफाइन है, कहीं सिलेबस विलेबस में कुछ डिफाइन है कि तुमको ऐसे ऐसे लिखना है। ये लिटरेचर का पेपर थोड़ी है, ठीक है, जनरल स्टडीज वाले पेपर है। तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है इतना कि तुम्हें फ्लोरी लैंग्वेज चाहिए। लेकिन अगर ये हो तो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन ये ना होगी, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। बेस्ट एग्जांपल इज एनसीईआरटी। क्या एनसीईआरटी में फ्लोरी लैंग्वेज रहती है? लिखे तो गवर्नमेंट ने, बहुत सिंपल रहते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल बट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। बस एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज चाहिए ऐसे समझो तुम ऐसे में, कुछ जरूरत नहीं है फ्लोरी, ठीक है, वो लैंग्वेज की। तो ये जरूरत नहीं है, होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत है ऐसा नहीं। क्या इजी टू मैनेज है? ऐसे इजी है मैनेज करने के लिए ऐसे?
इजी है? ये मीथ है। हाँ, ऐसे मैनेज करने के लिए डिफिकल्ट है बहुत अभी के टाइम में। पहले बहुत इजी था। पहले क्या, इंडिया चाइना रिलेशन भी लिखना है तुमको, ठीक है, तो सबको पता है, सबने पढ़ा है इंडिया चाइना रिलेशन, लिखते बैठे 10 पेजेस। अभी ठीक है, पहले और एक इजी क्या था कि 2 एसेस थे, पहला स्टैटिक, दूसरा फिलोसॉफिकल, कुछ तो भी। तो ठीक है, तुम्हारे पास लाइफ का इतना बड़ा कंटेंट है लास्ट 20-30 ईयर्स का, ठीक है, तो वो तो बैठ जाएगा 1200 में। अभी क्या करना है, अभी की प्रैक्टिस, वो लाइफ का 30 ईयर्स का 25 ईयर्स का कंटेंट तुमको 2 ऐसे में लिखना है। लाइफ का कंटेंट तो सेम ही रहेगा, अभी उसको डिवाइड कैसे करना? वुमन एम्पावरमेंट का इशू इस ऐसे में लिखना है और उस ऐसे में भी लिखना है, तो लिखना कैसे डिफरेंट तरीके से? इसीलिए ऐसे की प्रैक्टिस के लिए एक फिलोसफी के लिए से मैनेज हो सकता है, दूसरे में कैसे करना? फिर सेम एग्जांपल, सेम कोर्स, ठीक है, सेम अप्रोच, सेम डायमेंशंस, कंटेंट भी सेम, और लिखना 2 इसमें, और सेकंड इसमें अच्छी तरीके से नहीं लिखा और रिपीटेशन लगा तो फिर क्या होगा? मार्क्स मिलने वाली नहीं है। पहले इसमें तुमको 70-80 मार्क्स, सेकंड ऐसे में 30-40। कल ही मैं 4 ऐसे चेक करके आया हूँ, सेम पैटर्न, सेम प्रैक्टिस। एक हिस्से में 75, सेकंड हिस्से में 35। मैं नहीं दिया कल मार्क्स, क्योंकि वो क्या होता है, सेम रिपीटेशन ऑफ द कंटेंट, ठीक है। तो इसलिए ये डिफिकल्ट है मैनेज करना, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। इसको रिस्ट्रिक्शन लगाया ना तुमने कुछ पे, तो ये मैनेज हो सकता है। देन ये सबसे बड़ा मीथ है कि कॉमन टॉपिक शुड नॉट बी रिटन। किसको किसको लगता है कि नहीं, जो 4 ऐसे के टॉपिक है उसमें से जो सबसे कॉमन लगा वो नहीं लिखना, हमें कुछ तो भी अलग करना है, तूफानी करनी है हमको, ठीक है। जो सबसे यूनिक टॉपिक लगेगा, जो कोई नहीं लिखेगा, वो मैं लिखूंगा, ठीक है, बाकी सारे लिस्ट में आएंगे, मैं बाहर जाऊंगा। हाँ, यही एटीट्यूड है बहुत लोगों का, ठीक है। बाहर आने के बाद बहुत लोग ये बताते हैं, मैंने वो लिखा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने हमारे बारे में सोचा भी नहीं है, फिर निकाल दिया बाहर। और ये एटीट्यूड है एक्चुअल में, ये प्रैक्टिस है, बहुत सारे बंदे ऐसे करते, ठीक है। वो वहां पे भी करते, कहाँ पे, ऑप्शनल के पेपर में वो क्वेश्चन चूज करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये डिफिकल्ट है और कभी नहीं लिखा, मैं लिखूंगा ये। अगर तुम्हारा कमांड है उसके ऊपर तो ठीक है, तुमको आता है तो फिर तो बेस्ट ही है, फिर उसमें एज है। लेकिन तुम तूफानी करने जाओगे, कुछ तो भी उठाओगे और फिर आया नहीं तुमको कुछ। और ये कब पता चलता है? 500 वर्ड्स लिखने के बाद। 500 वर्ड्स इतने अच्छे से लिखे जाते हैं ना ऐसे टॉपिक पे, ठीक है, और बाद में फिर लिखना क्या है, कंटेंट ही खत्म, डायमेंशन ही नहीं, अभी एक्सप्लेनेशन क्या करना है, एग्जाम्पल कहाँ से दे, ठीक है। ये सारी बातें, ऐसी तूफानी करनी नहीं है। जो सारे लोग लिखने वाले हैं वो अगर भी तुमने भी लिखा, ठीक है, तो भी चलेगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। जो टॉपिक तुम्हें पसंद है, तुम्हें आता होगा, तुम्हारे पास कंटेंट है, तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन है, उसके एग्जाम्पल्स है, वो टॉपिक अच्छा, ठीक है, रादर देन चूजिंग अ डिफिकल्ट टॉपिक्स। अभी सबसे बड़ी बात, क्या यूपीएससी ने ऐसे का सिलेबस डिफाइन किया है? सिलेबस है क्या यूपीएससी में ऐसे का? नहीं है। है? नहीं है। है क्या सिलेबस? नहीं है। है? थोड़ा सा कुछ तो भी है, गाइडलाइंस है क्या? कितने लोगों को पता है? देखा कभी? पढ़ा वहां पे क्या दिया है? बिना सिलेबस का तो यूपीएससी भी कहीं जाएगा नहीं, ठीक है, डिटेल दिया है। ऐसे का भी सिलेबस है और यूपीएससी का कॉपी पेस्ट है, ठीक है, मेरे मन से नहीं लिखा मैंने कुछ तो भी। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द, भावना में बहना नहीं है तुमको, ठीक है, कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। ये है इंटरप्रिटेशन, इसलिए यूटर्न हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, अरेंजिंग देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन। सबसे डिफिकल्ट चीज जो हर एस्पिरेंट को जाती है, दैट इज कनेक्टिविटी एंड मेंटेनिंग अ फ्लो। ऑर्डरली फैशन रहता ही नहीं है। पहले हिस्टोरिकल एंगल, एकदम से टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, ठीक है, फिर पॉलिटी के बाद इकोनॉमी के बाद एनवायरमेंट के बाद फिलोसॉफी, बाद में कुछ तो भी नया एंगल आ जाएगा, फिर स्टोरी, ठीक है, जंप करते रहते इधर के उधर, उधर के इधर, पूरे डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। तो उसका फ्लो ही मेंटेन नहीं रहता है। उन्होंने दिया है अरेंज देयर आइडियाज इन द ऑर्डरली फैशन। नेक्स्ट,
राइट कंसाइजली, तो लिखते बैठे अपन कुछ भी, ठीक है। देन क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस, ठीक है। कुछ भी लिखने से क्रेडिट नहीं मिलने वाला, इसलिए ऐसे में 60 भी आएंगे और 170 भी आ सकते हैं। दिस इज अ मेजर डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने दिया है कि लिखना क्या है, मन से नहीं लिखना है सिर्फ, और जो पता है वो तो लिखना ही नहीं है, जो पूछा है वो लिखना है, ठीक है। नहीं तो फिर फिलोसॉफी तो है ही अपने पास, तो जितना पूछा है उतना ही लिखना है और ऑर्डरली फैशन में लिखना है, और उसको क्रेडिट है, उससे से मिलने वाला है। इसलिए मुझे लगता है मुझे भी मार्क्स इसीलिए मिले, तो जो मन से लिखना होता तो मुझे मार्क्स नहीं मिलते थे, ठीक है, क्योंकि मेरे मन से तो हो ही नहीं सकता इतना अच्छा। सो नेक्स्ट इज अ पर्पज, नॉलेज। क्या क्या चेक करते हैं ऐसे में, क्यों ऐसे को इतना इंपॉर्टेंस दिया है, क्या क्या चेक कर सकते हैं ऐसे में, क्या क्या हो सकता है ऐसे में? डेफिनेटली that is your expression. Next, articulation, that is your comprehension skill. Next, example, that is your knowledge. Knowledge they are going to test, or dimension. This definitely within the knowledge you can write in the different dimensions. Next, और क्या हो सकता है? Your values, that means your personality. So this is the most important thing. Even through the essay we can judge your personality, ठीक है। ऐसे से पता चल जाता है कि तुम्हारा थॉट क्या है, because why essay is a should be like discussion. ये आंसर फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, इसमें डायग्राम्स, हेडिंग्स, वीडिंग्स ऐसा कुछ नहीं है, ये डिस्कशन है, ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे कुछ लोग लिखते हैं उसको हेडिंग्स डाल के, फिर वहां पे डायग्राम्स भी बनाते हैं, वो ऐसे में जरूरत नहीं है। दिया है ना पूरा जीएस 1 2 3 4 है, ऑप्शन है तुम्हारे पास, लिखो ना वहां पे, हर एक पेज पे एक डायग्राम निकालो, ठीक है, हर एक सब टॉपिक को हेडिंग दो। ये ऐसे का पेपर तुम्हारा डिस्कशन है, ये कम्युनिकेशन है एक्चुअल में, कम्युनिकेशन। और ये क्यों? क्योंकि जो चेक करने वाला कोई भी बंदा हो, उसको तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या पता है, उसको ये भी नहीं पता कि ये लिखा किसने, ठीक है, जेंडर भी नहीं पता उसका, कैंडिडेट का नाम भी नहीं पता, कुछ भी कुछ पता नहीं है। तुम्हारे डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन से पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, मेल जेंडर ने लिखा या फीमेल वो भी पता चल जाता है, एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि तुमने कौन से एग्जाम्पल दिए। राम लखन ले लिया तो फिक्स है तुम्हें, ठीक है। कल में वो इसलिए कहते हैं कि जेंडर न्यूट्रल लिखो, ठीक है, नहीं तो ही और शी दोनों इंक्लूड करो उसमें, ताकि उसमें पता ना चले कि तुम कौन से एंगल से लिख रहे हो। और अगर तुमको इफेक्टिव बनाना हो तो फ्रॉम द फेमिनिस्ट और वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड पर्सपेक्टिव से उसको एम्फेसाइज करो, ताकि फिर जज ना हो सके और उसको ज्यादा, ठीक है, एम्पैथेटिकली मार्क्स भी ज्यादा मिल जाए, rather than giving importance to the male oriented। तो इससे पता चल जाता है तुम्हारी पर्सनैलिटी, एंड दिस इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और कैसे पता चल जाता है? ऐसे से, ठीक है, तुम डिस्कशन लिखोगे, एक्सप्रेशन सही है थॉट्स का तुम्हारा सब कुछ, ठीक है, नॉलेज भी है, और क्रिएटिविटी, तुम कैसे सोचते हो, इट इज अ कंप्लीट योर थॉट। तुम्हारा जो रफ वर्क रहता है ना, उससे पता चलता है तुमने लिखा क्या है, क्या क्या सोचा है, कैसे सोचा है, ठीक है। बहुत बार एक गड़बड़ होती है कि सोशल एंकर लिखा, ठीक है,